So very good afternoon to everyone, and I am seeing that a lot of attendees have started joining us. So very good afternoon and greetings from Webinar Wall. Today we are having a session on unleashing the super learner in you with Mr. Bhomik Sen. Mr. Bhomik is a software engineer by profession and an author, mindset and memory coach. He's also a public speaking trainer by passion with over a decade of experience. So I think without much ado, let's begin with this session. And welcome to the session, Bhomik. Let's begin. All right. Thank you, Ayushi, very much for the introduction and giving me this chance to speak about what has been my favorite topic. And to all the participants, I humbly thank you very much as you have taken out this time and taken out the time to join this particular webinar. Without any further ado, let us, I think, start. We are a good number of participants here, and I would be trying to wrap it up in 50, 55 odd minutes, and that is where the
it would be actually, you know, the respect for your time and my time as well. All right, so without any further ado, let me start with this presentation of what would be a fantabulous journey for next 55 minutes. If you can hear me well, guys, you can type yes in the chat box. Type yes in the chat box if you can hear me well. I hope you can hear me well. So if you can write in the chat box that yes, I can hear you well. All right, I assume that is the case here. So guys, again, welcome to this webinar, which is about unleashing the super learner in you, and it is based on my book, which is Hidden Secrets of Super Learner. Right. A brief introduction about myself. My name is Bhaumik. I'm an author, a mindset and a memory coach, a public speaking trainer, a TEDx speaker. And for last 10 years, I've been empowering students with my public speaking workshops and confidence building workshops. Specifically for last 5 years, I've been working closely with them as an academic enabler, right? So I'm actually helping them in their academic challenges, what they're facing, and help them to tap into the unlimited potential of their mind to become super learners and have an unbeatable mindset, right? And as you have given me your precious 55 to 60 minutes today, I will make it sure that for next 55 minutes, you will be having a good takeaways from this particular session, right? So we'll be discussing about the challenges, the common challenges which are faced by students in today's world, right? We'll be talking about the secrets of concentration. आज तक बचपन से लेकर आज तक हमें सबने बोला है, हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स सबने यही बोला है कि बेटा कंसंट्रेट करो, guys pay attention, right? कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट क्यों नहीं करते हो, फोकस करो. बट किसी ने हमें आज तक ये नहीं बताया कि कंसंट्रेशन किया कैसे जाता है, right? So I'll be briefly talking about that. And once we'll be understanding the secrets of concentration, I'll be talking about 2 secrets of concentration. We'll be also talking about the magic of a trained memory. How you can train your memory and you will see the magic of the trained memory, and you will use how you can use that particular trained memory superpower in building a super vocabulary, right? I'll be telling you that how in just a span of 15 days you can learn over 100 English vocabulary words. Now imagine अगर आपने 15 दिनों में 100 words, if you are able to capture, if you are able to remember, in a 6 months span of time, you will be able to, you know, build your vocabulary super strong, right? So we'll be talking about that as well. And another point is considering these COVID times, right? Digital distraction, digital overload बहुत ज़्यादा हो चुका है, right? Everyone is on computer, everyone is involved digitally, and it also brings in with itself the digital distraction. I'll be talking about one super way. These are not any strategies or stuff वो आपको internet पे भी मिल सकता है, but then yes, I'll be talking about one super mindset way to eliminate distractions totally from your life. And the last but not the least, I will be having a free gift for you, for all of you who have joined this webinar and you know, spare 40 minutes with me, 45 minutes with me. So thank you so much. I again thank you and welcome you to this expedition of learning. All right, as I said, that this is the information age which we are living, right? And in this information age, we are bombarded with all the information from all the sides, right? So much of information is coming to us, and it is not your muscle power, but it is your mind power which matters, guys, here, right? It is not your root strength, but it is your brain strength which comes into play in this information age. और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि the better you learn, the better you earn, actually, right? And I'm not only talking about the financial aspect here, but I'm talking about the better your life becomes, the better your state of mind becomes, right? If you are a better learner, you are in for a fantabulous life, guys. All right. Okay, so before we move on, I hope you can recognize these people who are there on your screen, right? If you can write, if you can see these guys, we can write yes or no in the chat box. All right. Okay. And if we can have some common traits, if we can identify some common traits in these billionaires, in these celebrities, I mean, what would those be? I give you 30 seconds to think about those traits, right? And we can then move ahead. 30 seconds, guys.
All right. So I hope you must have identified some common traits between amongst these people. Yes, they are celebrities. They are absolute celebrities. Yes, they are big time billionaires, right? Big time billionaires. They are world leaders. Yes, agreed. They are master of their trades. Yes, they are actually master of their trades. That's why they are at that particular position. They are passionate and committed. No doubt about that, right? They are totally passionate and committed about whatever they are doing. But last but not the least, in fact, the most important point, guys, here is that these guys are lifelong learners, right? कितनी बारी ऐसा होता है कि when we graduate from the college, whether it is a graduation or a post graduation, उसके बाद हमारी job लग जाती है and we think that it is done. मैं अपनी learning कर चुका हूँ, इसके बाद मैंने कुछ learn नहीं करना है, इसके बाद मेरे को सिर्फ job करनी है. But then that is where we do this mistake, right? We stop our learning as soon as we are out of the college and we are into the job, right? And I would again like to reiterate my favorite point here, that your learning ability will eventually decide your earning capacity, guys, right? And it is not again the financial terms of it, but then again your quality of life, your state of mind. It all depends upon how better a learner you are, right? So with that, I would again like to mention about the most vital skill in this 21st century, right? We are all bombarded with these digital distractions, right? With machine learning coming in, coding coming in, blockchain coming in, CA, if you are a CA, if you're an engineer, if you are a businessman, anything. आपको अगर ग्रो करना है तो आपको एक स्किल पे मास्टरी जरूर करनी है, और वो है हाउ टू लर्न. अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि आप किस तरह से सीख सकते हैं और किस तरह से चीजों को याद कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोडिंग हो, चाहे इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे MBA हो, चाहे CA हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी फील्ड हो, right? You will be able to excel if you just understand one thing, if you just implement this one thing कि how to learn, कि हम सीखे कैसे, right? और जहाँ तक लर्निंग का सवाल है, right, ये लर्निंग हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, चाहे एडल्ट्स हैं, चाहे किसी भी एज पे है. But specifically for students, it is really important, because student life may maximum time, maximum weightage goes into the learning part of it only. And that is why we call it as the fundamental years. Studenthood ko hum log fundamental years bhi kehte hain, right? We call these as fundamental years because यही वो टाइम है जब आपको अगर कोई नया स्किल डेवलप करना है, कोई नई हैबिट डेवलप करना है, कोई नया एटीट्यूड करना है, कोई भी नई चीज लर्न करनी है, सीखनी है. This is the best time. I would like to explain it with an example of a potter's wheel, right? जैसे कि एक कुम्हार जो होता है वो घड़ा बना रहा होता है. So the best time to mold that pot is when it is still on the potter's wheel, right? जब वो उस potter's wheel पे होता है, उसी टाइम उसको जितना होल्ड कर दो, वो वही शेप ले लेगा. But once it is done, right? Once it is prepared, जब उसको हम भट्टी में डाल देते हैं और वो बाहर निकलता है एक पूरा पका हुआ मटका, एक पका हुआ पॉट जो निकलता है, उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो it will break, right? It will break. So the best time to mold a pot is when it is still on the potter's wheel, guys. And similarly, the best time to learn anything, the best time to develop a new habit, a new skill, anything, any new thing is the childhood years, right? And I personally have been involved with students for guys, can you please go on mute? Ayushi, if we can have everyone on mute, please. Yes. Actually, yes. Sure. Thank you very much. I've just muted all the participants. So okay. If you have any questions, you can write them on the chat box. All right. Thank you so much. Thank you so much, Ayushi. All right. So I was talking about the student years. और जिस तरह से मैं पिछले 10 सालों से students के साथ हूँ, उनके confidence के challenges को हम लोग जो है improve कर रहे हैं. Plus पिछले since last 5 years I've been acting as an academic enabler. I understand some common challenges of these students. हालांकि अगर मैं बात करूं तो हर स्टूडेंट का अपना एक यूनिक चैलेंज होता है, एक यूनिक चैलेंज रहता है. बट देन इफ आई टॉक अबाउट सम कॉमन चैलेंजेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड यू वुड आल्सो बी एबल टू रिलेट टू दीज चैलेंजेस, राइट? सो कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे अपना जो करिकुलम है, जो कोर्स है, वो मेमोराइज नहीं होता, राइट? मेमोराइज करने में उनको दिक्कत होती है. कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो याद तो कर लेते हैं लेकिन उस चीज को रिटेन नहीं कर पाते लंबे समय तक, राइट? जैसे आपने आज याद किया, उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आप भूल जाएंगे, राइट? कितनी ही बारी हम लोग ऐसा होता है कि हम लोगों ने याद भी कर लिया, हमें वो याद रह भी गया, रिटेन भी हो गया, लेकिन जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसे, वो पैर अंदर रखा, एवरीथिंग गोज ब्लैंक,
सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। और मजे की बात यह है कि जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं हमें सब कुछ याद भी आ जाता है, राइट? ऐसा होता है हमारे साथ। कितनी बार ऐसा होता है कि हम आज की डेट में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से वी गाइस आर बॉम्बार्डेड, राइट? एंड स्पेसिफिकली विद योर मोबाइल फोन, स्पेसिफिकली with the advent of these OTT platforms, Netflix and Hotstar and all those stuff, distraction बढ़ ही गया है, right? We are not able to concentrate and focus, right? हमें सबने बताया है कि बेटा कंसंट्रेट करो, फोकस करो, किसी ने हमें ये नहीं बताया कि करें कैसे, राइट? कितनी बार ऐसा होता है कि हम बुक खोल के बैठते हैं और अंदर से आवाज आती है कि छोड़ यार कल पढ़ेंगे। ऐसा होता है हमारे साथ, वी डू प्रोक्रास्टिनेट। हमें साइंस तो अच्छा लगता है बट मैथ्स अच्छा नहीं लगता, हमें इंग्लिश तो अच्छा लगता है बट हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। वी हैव सिलेक्टिव इंटरेस्ट इन स्टडीज, राइट? और एक जो कॉमन चैलेंज है जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हमें मेरे को आके बोलते हैं वो ये है कि भाई मेरा बेटा या बेटी इंटेलिजेंट तो बहुत है, इसमें कैलिबर तो बहुत है, लेकिन ये अपने पूरे के पूरे पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होता है हमारे साथ, राइट? दिस इज वन मेजर थिंग, वन मेजॉरिटी ऑफ थिंग व्हिच आई हियर, राइट? और इसके बाद अब आप यहाँ पे बात समझिए, स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये चैलेंजेस है, इसके बाद हम उन्हें कहते हैं कि बेटा पढ़ो, फोकस करो, और बच्चे को नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। सीरियसली उसको नहीं समझ में आता, ही इज टोटली कंफ्यूज्ड। यू नो इट इज लाइक कि आपके जूते में, आपके शू में किसी ने एक पेबल डाल दिया हो और आपको बोला हो कि आप बेटा भागो इस रेस में, उस रेस में आपको फर्स्ट आना है। हो सकता है कि आप भाग पाए, आप बिल्कुल भाग पाएंगे, हो सकता है कि आप रेस भी जीत जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ इट यू विल लेफ्ट विद अ फुट ब्लडीड, पूरा का पूरा इंजर्ड फुट होगा आपका। और यही कुछ हालत आज की डेट में हम स्टूडेंट्स के साथ हो रही है, एंड इसलिए हमने इन स्टडीज को पेन के साथ परसीव कर लिया है। एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द ओनली रीजन कि बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं, उनको स्टडीज नहीं अच्छा लगता है, एंड मेजर और कभी एक्सट्रीम केसेस में इट एक्चुअली टर्न्स इनटू सुसाइड्स एज वेल, राइट? आज की डेट में हर घंटे अगर हम एनसीआरबी के स्टैट से जाए, हर घंटे एक बच्चा सुसाइड करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेशर ऑफ स्टडीज, right? But then there is a good thing here, guys. We will be changing it, right? And I'm saying this with confidence because I'm doing this for last 5 years. So if you are a student, if you are a parent, if you're a student who is attending this webinar, stay tuned because we have many things, and I will tell you that how to make learning easy. It is actually becoming good at learning is actually easy, guys, right? So are you with me? If you are with me, type in the chat box, yes, I'm in. Type in the chat box, yes, I'm in, guys. Yes, I'm in. Let's type, yes, I am in. Okay, all right, so ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक एनालॉजी देता हूँ यहाँ पे। लेट मी स्टार्ट विद वन स्मॉल एनालॉजी, ठीक है? सपोज कीजिए कि आपके फादर ने आपको एक सुपर कंप्यूटर दिया, आपके फादर ने आपको एक सुपर कंप्यूटर दिया है, और ये सुपर कंप्यूटर ऐसा है जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, राइट? इट कैन डू एनीथिंग फॉर यू। अगर आपको कोई नया स्किल याद करना है, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, आपको एग्जामिनेशन में टॉप करना है, राइट? This supercomputer has the ability to do anything for you guys, anything. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपके पापा ने आपको ये सुपर कंप्यूटर गिफ्ट तो कर दिया, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, आपको नहीं पता कि इसको मैं ऑपरेट कैसे करूँ। आपको इस सुपर कंप्यूटर को ऑपरेट करना नहीं आता, आपको ये चलाना नहीं आता। बताइए कि क्या ये कोई हेल्प कर पाएगा आपकी ये सुपर कंप्यूटर? भले ही ये जितना मर्जी स्ट्रांग हो, जितना मर्जी पावरफुल हो, क्या ये हेल्प कर पाएगा? The answer is no, right? अब यहाँ पे कितना अच्छा हो कि अगर आपके फादर आपको इस सुपर कंप्यूटर के साथ साथ इसका जो ऑपरेटिंग मैनुअल है वो भी दे दें, और उसके अंदर लिखा हो कि इस सुपर कंप्यूटर को किस तरह से चलाना है, किस तरह से यूज करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप कहीं फंसते हो, तो किस तरह से उसको रिजॉल्व करना है और उसमें आगे बढ़ना है। तो विल यू बी एबल टू यूज दिस सुपर कंप्यूटर टू द फुलेस्ट, टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल? द आंसर इज yes. And guys, similarly, that Almighty has given us with a wonderful gift called brain, right? लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है हम लोगों के साथ कि हम लोगों को नहीं पता कि इसको यूज कैसे करना है, इसको अच्छे से यूज कैसे करना है, राइट? और यहाँ पे सिमिलरली, जैसे ऊपर हमने ऑपरेटिंग मैनुअल की बात करी, सिमिलरली ब्रेन को यूज करने की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, कुछ टेक्निक्स होती हैं, ट्रेनिंग होती है, राइट? अगर हमें ये स्ट्रैटेजीज, ये टेक्निक्स पता चल जाए कि किस तरह से हमारा ब्रेन पूरे के पूरे 100% पोटेंशियल पे उससे काम करेगा, we can use this super computer which is there between our shoulders to the fullest. और आपको सुपर लर्नर बनने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, कोई नहीं रोक सकता, right? It is just these strategies and techniques which you learn
सिर्फ ये स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स का डिफरेंस होता है गाइस। ब्रेन हम सबका 90 to 95% जो हार्डवेयर है ये सेम रहता है, 90 to 95%। यू ऑल आर गिफ्टेड विद सेम हार्डवेयर, ऑलमोस्ट सेम हार्डवेयर, राइट? बट डिफरेंशिएटर क्या होता है? These strategies and techniques which you learn differentiates an effective learner from an ineffective learner, right? And with this we will learn how to learn here, right? तो हम सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग की। लर्निंग के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, जो सबसे पहला कंपोनेंट है, वो है, इफ यू विल एग्री विद मी, वो है कंसंट्रेशन। अगर किसी भी चीज में आपकी कंसंट्रेशन नहीं है तो आप उस चीज को लर्न नहीं कर पाएंगे, राइट? आई होप यू आर विद मी, राइट? ओके, सो अगर किसी भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं है तो आप उसको लर्न नहीं कर पाओगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब आप मूवी देखने जाते हैं, राइट, जब आप मूवी देखने जाते हैं तो क्या आप अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि यार प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई जस्ट वांट टू कंसंट्रेट एंड वॉच दिस मूवी, आई जस्ट वांट टू कंसंट्रेट एंड वॉच दिस मूवी? क्या आप ऐसा कभी करते हैं? आप ऐसा कभी नहीं करते, राइट? और फिर भी ऐसा होता है कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको वो मूवी 60 to 70% याद रह जाती है, चाहे वो उसके सीक्वेंसेस हो, चाहे उसके वो एक्शन हो, ड्रामा हो या सॉन्ग्स हो, कुछ भी हो, वो आपको 60 to 70% 1 साल बाद भी याद रहती है, राइट? और आपने वो मूवी सिर्फ एक बार देखी है। तो ऐसा क्या होता है, क्या चीज होती है कि हमने सिर्फ एक बारी चीज देखी और हमें वो याद हो गई, राइट? I'll give you the answer. The answer here is your interest in that movie. Your interest in that movie makes you concentrate automatically. Automatically आपका जहाँ पे भी इंटरेस्ट होता है, आपका ब्रेन जहाँ पे भी एसोसिएटेड फील करता है, आपका ब्रेन जहाँ पे भी इंटरेस्टेड फील करता है, वहाँ पे कंसंट्रेशन अपने आप आ जाती है। इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आपको साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, राइट? एंड एज सून एज दैट क्लास स्टार्ट्स, आपकी क्लास टीचर एंटर करती है, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, यू बिकम जॉयफुल, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार अब तो मजा आएगा। और वो 40 मिनट का जो लेक्चर होता है वो कैसे निकलता है, यू हैव नो आइडिया, एकदम से इस तरह से निकल जाता है। क्यों? बिकॉज यू एंजॉयड, यू कंसंट्रेटेड देयर। और आपने कुछ जानबूझ के कंसंट्रेट नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ वहां पे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट था, कंसंट्रेशन इम्प्लिसिटली वहां पर आ गई, गाइस, राइट? सो यहाँ पे दिस इज द $1 million फैक्ट हियर, गाइस, कि जहां पे भी इंटरेस्ट या एसोसिएशन आ जाता है, हमारा ब्रेन जहां पे भी इंटरेस्टेड फील करता है, एसोसिएटेड फील करता है, वहां पे कंसंट्रेशन अपने आप आती है। और कंसंट्रेशन जहां पे अपने आप आ गई, वहां पे लर्निंग अपने आप आएगी ही आएगी। अगर इसी का मैं एक रिवर्स उदाहरण दूं, एक रिवर्स एग्जांपल दूं, सपोज कीजिए हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। अब हिस्ट्री को मैं काफी बदनाम कर चुका हूं, उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे को बच्चे अक्सर आके, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमसे हिस्ट्री याद नहीं होती, हमें बोरिंग लगता है। अब हिस्ट्री का सब्जेक्ट सपोज कीजिए आता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल बोर्ड फील करता है, राइट? उसका बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट है उसके अंदर। और क्यों, जैसे वो टीचर एंटर करती है, वो जॉयफुल के बजाय एक सैड स्टेट में हो जाता है कि अभी अगले 40 मिनट निकलेंगे कैसे यार। एंड इट सीम्स लाइक कि पता नहीं कितने साल हो गए, कितने सारे साल हो गए हम इसी क्लासरूम में बैठे हैं हिस्ट्री पढ़ते हुए, ऐसा लगता है हमें। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। दैट इज व्हाई वी फाइंड हिस्ट्री और सब्जेक्ट्स जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उनको याद करने में दिक्कत लगती है हमें, गाइस, राइट? एंड यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा कि दैट वेयर एवर इंटरेस्ट गोज, concentration flows. Wherever interest goes, concentration flows. अपने आप आती है concentration जहां पे भी आपका इंटरेस्ट जाता है. This is $1 million fact, guys, that our mind tends to concentrate automatically. आपको कुछ नहीं करने की जरूरत. Our mind tends to concentrate automatically in the topic, on the topic of its interest or liking, right? If you had this wow moment, say yes in the chat box. Type yes in the chat box, guys. Type yes in the chat box, right? ओके, बट आप यहाँ पे कहेंगे कि सर ठीक है, ये तो आपने बता दिया, जिन सब्जेक्ट्स में हमें इंटरेस्ट ऑलरेडी है वहां पे कंसंट्रेशन आती है, हमें समझ में आता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम वो नहीं है। स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी प्रॉब्लम वो नहीं है, हमारी प्रॉब्लम वो है जो सब्जेक्ट्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, ये बताएं तो हम जाने। आर यू विद मी? आर यू विद मी हियर, राइट? कि सपोज कीजिए मेरे को साइंस अच्छा लगता है, साइंस में मेरा इंटरेस्ट है, कंसंट्रेशन अपने आप आ गई, हो गया काम, आई एम ओके। बट हिस्ट्री हो गया, मैथ्स मेरे को समझ नहीं आता, देयर आर मच मोर सब्जेक्ट्स, कुछ बच्चों को ज्योग्राफी समझ नहीं आती, सिविक्स समझ नहीं आती। सो जब इंटरेस्ट नहीं होता, वो इंटरेस्ट लाएं कैसे, राइट? सो आई विल टेल यू those modalities of our brain or of our mind wherein your mind feels interested automatically. Okay, are you with me? अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा माइंड इंटरेस्टेड किन किन चीजों में होता है, राइट? अगर हम ये समझ जाए हमारा माइंड किन किन चीजों में इंटरेस्टेड होता है, और अगर उन्हीं चीजों को उठा के हम अपने करिकुलम में डाल दें, तो इट वुड बी
a good thing for us, right? So अब हम समझते हैं हमारा माइंड इंटरेस्टेड किस में होता है, right? There are 6 modalities. ध्यान से समझिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, and this will lead us to the first secret of concentration, guys. बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कंसंट्रेशन हमारा माइंड जो है वो इंटरेस्टेड किन किन चीजों में होता है, राइट? इमेजिन कीजिए कि आपके शहर में, ठीक है, आपके सिटी में देयर आर 2 सिनेमा हॉल्स. One shows the movie in black and white. The another one shows the movie in color, in colorful aspect. कौन सी देखना प्रेफर करेंगे आप? Obviously जो कलरफुल है, राइट? एक मूवी हॉल में मूवी चल रही है बिना साउंड के, म्यूटेड मूवी, और दूसरे सिनेमा हॉल में मूवी चल रही है विद साउंड. कौन सा देखना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली विद साउंड. एक में सिर्फ इमेजेस दिखाई जा रही है, सिर्फ इमेजेस दिखाई जा रही है, और दूसरी में इमेजेस दिखाई जा रही है इन फॉर्म ऑफ अ मूवी, मूविंग इमेजेस दिखाई जा रही है, राइट? कौन सा देखना पसंद करेंगे आप? एक प्रॉपर मूवीज या आपको एक स्लाइड शो दिखा दिया जाए हॉल में, वो पसंद करेंगे? ऑब्वियसली मूवीज, राइट? फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज कीजिए कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, राइट? और पार्क में आप देखते हैं कि पार्क में जो नींबू लगे हुए हैं ना, जो एक पेड़ है, उसमें जो नींबू लगे हुए हैं वो नींबू आर ऑफ द साइज ऑफ वाटरमेलन, और जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन आर ऑफ साइज ऑफ अ लेमन, राइट? समथिंग बिजार, समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन. कभी भी कोई भी चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है, या कभी भी कोई भी चीज यूनिक होती है या बिजार होती है, आपको वो चीज हमेशा याद रह जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से स्कूल जाते थे, जब प्री कोविड एरा में आप अपने घर से स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे, रास्ते में आप कितनी गाड़ियां, कितने लोग, कितनी चीजें देखते थे, आपको क्या सब याद रहती थी? नहीं. लेकिन सपोज कीजिए वन फाइन डे आप देखते हैं अपने बस में बैठे हुए, एंड यू लुक आउट ऑफ द विंडो एंड यू सी दैट देयर इज अ बिग कार, राइट? देयर इज अ बिग कार. उसके ऊपर एक इंसान खड़ा हुआ है जिसने रेड कलर की टोपी पहनी हुई है, और वो सीटियां बजा रहा है, और उसकी पूंछ निकली हुई है, और वो वहां पे डांस कर रहा है. नो, टेल मी वन थिंग, क्या आप कभी भी अपनी लाइफ में इस इवेंट को भूल पाएंगे? आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे. आप चाहे जितने मर्जी ओल्ड हो जाए, आप 60 साल के, 70 साल के हो जाओगे, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये वाला किस्सा सुना रहे होगे जरूर. क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग दैट वाज यूनिक, दैट वाज बिजार. कि आप पार्क में गए और आपको नींबू मिला जो कि वाटरमेलन का साइज था. आप स्कूल से वापस आ रहे थे, आपने देखा एक इंसान जिसकी पूंछ निकली हुई थी, उसने टोपी पहनी और वो नाच रहा है ऐसे, राइट? सो दीज आर बिजार थिंग्स व्हिच योर माइंड गेट्स इंटरेस्टेड इन एंड इट रिमेंबर्स. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब लोगों ने अपनी वो स्कूल की फोटोग्राफ तो देखी होगी, जो एक स्कूल की ग्रुप फोटोग्राफ होती है, राइट? जैसे ही वो फोटोग्राफ आपके हाथ में आती है, आप किसको देखते हैं सबसे पहले? अपनी क्लास टीचर को, या अपने बेस्ट फ्रेंड को? किसको देखते हैं सबसे पहले? आप सबसे पहले देखते हैं खुद को, राइट? सो जहां पे भी आप प्रेजेंट होंगे, जहां पे भी आप प्रेजेंट होंगे, वहां पे आपका माइंड इंटरेस्टेड अपने आप फील करेगा, गाइस. दैट इज वेयर वी लाइक दीज लाइक्स ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टा, कि लोग हमें फॉलो करें. किसको फॉलो करें? मेरे को फॉलो करें, मुझे फॉलो करें. वहां पे मेरा इंटरेस्ट आता है, राइट? लाइक्स मिले, वहां पे मेरा इंटरेस्ट आता है. कहीं पे भी जहां पे आप प्रेजेंट है, वहां पे आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आएगा, गाइस. लास्ट थिंग, एनीथिंग विद विच योर फीलिंग्स और इमोशंस आर टाइड अप, यू टेंड टू रिमेंबर देम. आज की डेट में अगर मैं आपको कोई बचपन का एक सॉन्ग सुना दूं जो आपने बचपन में कभी सुना था, you will go back to that memory lane in that time, और आपको वो सारी की सारी चीजें याद आ जाएंगी जो सॉन्ग से, जो उस टाइम से जुड़ी हुई होंगी, राइट? और अगर आप एडल्ट्स हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं यहाँ पे, तो आपको याद रहेगा कि आपकी वो फर्स्ट सैलरी, वो आपकी फर्स्ट जॉब, राइट? अगर किसी ने आपको कभी ह्यूमिलिएट किया है, वो भी एक इमोशन होता है, राइट? कोई किसी ने आपको प्रेज किया है, आप किसी चीज में सक्सेसफुल रहे हैं, राइट? आपको वो सब चीजें याद रह जाती है. क्यों? क्योंकि उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, राइट? नाउ हियर comes another $1 million fact, guys. Any information combined with emotion becomes a long-term memory. Any information combined with emotion becomes a long-term memory, guys, right? अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि कुछ मीठा हो जाए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एकदम से कैडबरीज आएगा, राइट? क्योंकि कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं उसके साथ. ठंडा मतलब कोका कोला, कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं उन चीजों के साथ, राइट? तो इसलिए पहली सैलरी, पहली कार, पहला प्यार, सॉरी, ये सब चीजें आपको याद रह जाती है क्योंकि इन सब चीजों के साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, राइट? सो ये जो 6 चीजें हैं, गाइस, समथिंग व्हिच इज कलरफुल, समथिंग व्हिच हैज साउंड, समथिंग व्हिच इज मूविंग, इमेजेस भी हैं और मूविंग भी है, समथिंग व्हिच इज यूनिक, समवेयर वेयर यू आर प्रेजेंट, एंड समथिंग विद व्हिच योर फीलिंग्स आर अटैच्ड. यहाँ पे हमारा माइंड जो है ना, वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट शो करता है, और जब उसने एक बार इंटरेस्ट शो कर दिया, वहां पे कंसंट्रेशन
अपने आप आ जाएगी, राइट? Wherever interest goes guys, concentration flows. This is a very important slide कि ये जो 6 चीजें हैं आपको दिख रही हैं यहाँ पे, कलर, मूवी, साउंड, यूनिक, आई मीन वर्ड एंड फीलिंग्स एंड इमोशन, ये अपने आप इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं और जहां पे भी इंटरेस्ट आया कंसंट्रेशन अपने आप आ गई, राइट? अब इसको अपने करिकुलम में कैसे लाना है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल, और उसी एक ट्रेन मेमोरी की टेक्निक से हम सीखेंगे कि हम वोकैबुलरी कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, यहाँ पे आई जस्ट ट्राई टू रीइंफोर्स माय पॉइंट व्हाट आई सेड हियर। आप लोगों में से कितनों को याद है टॉर्टोइज एंड हेयर स्टोरी, थर्स्टी क्रो की स्टोरी, ग्रीडी डॉग की स्टोरी? आप में से कितने बच्चों को याद है? आई होप सबको याद रहेगी, राइट? लेकिन कितनों को याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल? नो, मेरे को नहीं लगता सबको रहेगी, राइट? सबको याद रहेगा। ये रीजन क्या है इसका? क्योंकि जब मैं इन स्टोरीज के बारे में बात करता हूँ, व्हाट कम्स इनटू आवर माइंड इज दीज पिक्चर्स, राइट? दीज पिक्चर्स, दीज इमेजेस, ये मूवी आ जाती है आपके दिमाग में एकदम से जब भी मैं इन स्टोरीज की बात करता हूँ, राइट? और जब मैं डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, इन सब चीजों की बात करता हूँ, नो इमेज कम्स। एंड गाइस रिमेंबर वन थिंग, हमारा माइंड जो है वो हमेशा इमेजेस की फॉर्म में सोचता है। हमारा माइंड हमेशा इमेजेस की फॉर्म में सोचता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम याद करना चाहते हैं, जो हम सीखना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज हम जरूर करें, उसको हम विजुअलाइज जरूर करें। विजुअलाइजेशन कुछ नहीं होता, विजुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस of adding these pictures, movies, color, sound and uniqueness to the information you wish to learn. फॉर एग्जाम्पल आपको वोकैबुलरी ही याद करनी है, और मैं अभी करके भी दिखाऊंगा। वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स आपको याद करने हैं, तो आपको नहीं याद होंगे अगर आप उसको रटेंगे या रोटा मेथड से या रोट मेथड से याद करेंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर आपने कुछ पिक्चर्स डाल दी, मूवीज डाल दी, कुछ कलर्स डाल दिए, साउंड डाल दिया, कुछ यूनिकनेस डाल दी, आपको वो झट से याद हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू रिटेन देम फॉर मच लॉन्गर टाइम गाइस, मच लॉन्गर टाइम। अब इससे होता क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें समझ नहीं आती, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इमेज, और हमारा माइंड जो है वो इमेजेस को बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है? इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 3 सेकंड्स गाइस, क्लोज योर आईज फॉर 3 सेकंड्स एंड थिंक ऑफ एन एलिफेंट। एक हाथी के बारे में सोचिए। क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट एन एलिफेंट, ओके? सो यू कैन ओपन योर आईज। अब एक बात बताइए, आपके दिमाग में क्या आया? क्या एक एलिफेंट की इमेज आई या एलिफेंट के स्पेलिंग आई, ELEPHANT? क्या आया बताइए? आई एम श्योर 100% ऑफ द केसेस ये इमेज जरूर आई थी, ये इमेज जरूर आई होगी, बिकॉज आवर माइंड थिंक्स इन द टर्म्स ऑफ images, right? So our mind comprehends images and movies better than text. अब एक बात बताइए, अगर हमें पता चल गया है कि हमारा माइंड जो है वो समझता है, ज्यादा अच्छे से समझता है चीजों को जब वो इमेजेस और मूवीज की फॉर्म में हो, तो what stops us from converting our text and information we want to learn into images, right? So visualization जब हम करते हैं, और एक और पॉइंट है, जब हम विजुअलाइज करें, जब हम ये इमेजेस बनाएं, मेक श्योर कि ये हम कुछ बिजार इमेजेस बनाएं, कुछ यूनिक इमेजेस बनाएं जो यूजुअली इस वर्ल्ड में होता नहीं है। जैसे कि क्या आपको सही में कभी मिलेगा एक वाटरमेलन के साइज का नींबू या एक नींबू के साइज का वाटरमेलन? कभी आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो बिजार चीज आपको हमेशा याद रहेगी। The better we visualize, the better the information gets registered in our brain. हमारे माइंड में जब हम कुछ चीज सीखते हैं, एक सिनेप्सिस करके एक एक्टिविटी होती है, राइट? सो हम जितना अच्छे से विजुअलाइज करते हैं, वो उतना ही अच्छे से हमारे ब्रेन में रजिस्टर होता है गाइस। ऑलराइट, सो दिस ब्रिंग्स मी टू द सीक्रेट नंबर 1. Visualize, secret number 1 for concentration. Visualize the information by adding any of these 6 modalities to make it interesting. जो 6 modalities थी हमने अभी बात करी थी, राइट? साउंड था, इमेजेस थी, कलर्स थे, बिजार था जिसके अंदर मैं खुद प्रेजेंट हूँ, और एंड जिसके अंदर इमोशंस प्रेजेंट है। कोई भी ये 6 मोडालिटीज को आप ऐड कर दीजिए टू मेक योर इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर एवर गाइज। दिस इज द सीक्रेट नंबर 1 टू कंसंट्रेशन. If you like the secret number 1, type wow in the text box, in the chat box. Type wow in the chat box, guys. All right, thank you very much. This was the secret number 1. Now this takes me to the secret number 2 of concentration. ठीक है? अब यहाँ पे I'll try to start with a story. Imagine कीजिए दोपहर का वक्त है, right? और आप घर पे अकेले हैं, ठीक है? And there is a knock at your door. There's a knock at your door. ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। आपके दरवाजे पे एक दस्तक होती है, राइट? दस्तक होती है, ठीक है? और आप विंडो से देखते हैं या जो डोर होल होता है उससे देखते हैं, there is a guy जिसको आप नहीं जानते हैं. He's a total stranger to you. आप उसको नहीं जानते हैं. क्या आप उसको घर के अंदर आने देंगे? बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, राइट? बट इमेजिन एट द सेम टाइम
योर फोन रिंग्स, योर फोन रिंग्स, और आपके पापा का फोन आता है और आपके पापा कहते हैं कि बेटा देयर विल बी अ गाय कमिंग एट आवर प्लेस, विल बी वेयरिंग अ रेड शर्ट, अ ब्लैक पैंट, ही विल बी वेयरिंग अ हैट, एंड उसको ये वाले पेपर्स जो टीवी के ऊपर रखे हैं वो दे देना. And now you again see in the window, you see, yes, he is wearing a hat, he is wearing a red shirt, proper trouser, whatever stuff जो भी आपके पापा ने बताया, yes, वो associate कर पा रहे हो. Will you now allow him to enter? Yes, definitely. Obviously, आप इस तरह से hug नहीं करेंगे उसको, but then yes, you will allow that person in your house. Why? Because initially वो unknown था, stranger था, अब वो known हो चुका है. अब आप कहेंगे सर ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कौन सा आपने कोई हमें कोई एक 8th वंडर की बात बता दी. बट देन गाइस, अगर मैं इस एनालॉजी को कंपेयर करूं अपने माइंड के साथ, राइट, इट इज सेम. इमेजिन कीजिए आपको एक नया वर्ड याद करना है, इंग्लिश का एक नया वर्ड याद करना है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन याद करनी है जो टोटली आपके लिए न्यू है, टोटली आपके लिए स्ट्रेंजर है. आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को अंदर नहीं आने देगा. क्यों? क्योंकि वो न्यू इंफॉर्मेशन है, वो रेजिस्ट करेगा कि यार ये न्यू इंफॉर्मेशन है, मेरे को ये समझ नहीं आ रही है, तो मैं नहीं आने दूंगा. लेकिन एट द सेम टाइम अगर उस न्यू इंफॉर्मेशन को, ध्यान से सुनिएगा, आप उस न्यू इंफॉर्मेशन को एसोसिएट कर लें किसी इंफॉर्मेशन के साथ जो ऑलरेडी आपके ब्रेन में है, इस न्यू इंफॉर्मेशन को एसोसिएट कर लें ऑलरेडी किसी इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके ब्रेन में ऑलरेडी है, जो चीजें आपको पता है, then this information will be able to enter your brain, and not only enter, you will be able to register it much more strongly, right? So this is secret number 2 here, guys. Secret number 2 for concentration is that associate any new information to the already known information which is existing in your brain, and it will be yours forever, right? This is secret number 2. सीक्रेट नंबर 1 क्या था कंसंट्रेशन का? विजुअलाइजेशन क्यों करनी है? क्योंकि विजुअलाइजेशन से इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और जहां पे इंटरेस्ट क्रिएट होता है वहां पे कंसंट्रेशन अपने आप आता है, राइट? सीक्रेट नंबर 2 इज किसी न्यू इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ, एंड इट विल बी योर्स फॉरएवर गाइस, योर्स फॉरएवर, राइट? अब मैंने बता तो दिया ये 2 सीक्रेट्स. अब जब तक हम इस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे इसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट? क्योंकि जब तक हम चीजों को करके नहीं देखते हैं हमें वो चीज समझ नहीं आती. तो लेट अस अप्लाई दो सीक्रेट्स एंड सी द मैजिक ऑफ अ ट्रेन मेमोरी, राइट? और यहाँ पे मैं बात करूंगा ट्रेन मेमोरी का मैजिक, देखेंगे हाउ टू एनहांस अवर वोकैबुलरी, राइट? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, सुपर स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, गाइस, राइट? ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं इन्हीं दोनों सीक्रेट्स को यूज करके आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से ये वर्ड्स सीख सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, फॉर एग्जांपल हमें वर्ड याद करना है मिटिगेट. ध्यान से सुनिएगा, एक बार कमर सीधी करके बैठिए आराम से और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए. मिटिगेट वर्ड याद करना है. मिटिगेट का मतलब होता है टू लेसन, मतलब कम करना. मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, लेसन. अब इसके 2 तरीके याद करने के, या तो आप इसको रटिए, मिटिगेट टू लेसन, मिटिगेट टू लेसन, मिटिगेट टू लेसन, मिटिगेट टू लेसन. हो सकता है आपको याद हो जाए, लेकिन आप इसको रिटेन नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि कोई एसोसिएशन फॉर्म नहीं हो रही है. दिस इज प्योर इंफॉर्मेशन, कोई विजुअल नहीं है, कोई कलर नहीं है, राइट? लेकिन लेट मी नाउ आस्क यू टू क्लोज योर आईज और एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, ठीक है? एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और स्टोरी सुनाता हूं. ये वर्ड है मिटिगेट, ठीक है? इस मिटिगेट को हम ब्रेक करते हैं मिट्टी का गेट. मिट्टी का गेट, ठीक है? इमेजिन कीजिए कि आप एक बीच पे बैठे हैं और आप एक मिट्टी का गेट बना रहे हैं. अब वो मिट्टी का जो गेट बना रहे हैं आप, उसके ऊपर आप उसके ऊपर आपका जो फ्रेंड है ना, वो पानी डाल रहा है, बूंद बूंद करके, ड्रॉप करके पानी डाल रहा है. एंड यू आर स्कोल्डिंग योर फ्रेंड दैट नॉट टू डू दैट. क्यों? क्योंकि इससे मेरे गेट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है. द स्ट्रेंथ इज लेसनिंग. अगेन बताता हूँ, आप एक मिट्टी का गेट बना रहे हैं बीच पे और आपका फ्रेंड आके उसके ऊपर पानी डाल रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और आप उसको डांट रहे हैं कि यार ऐसे मत कर क्योंकि इससे इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, राइट? सो नाउ यू कैन ओपन योर आईज गाइस. अब यहाँ पे मैंने क्या किया? मिटिगेट वर्ड हमें नहीं पता. मैंने क्या किया? मिटिगेट को ब्रेक किया, मिट्टी एंड गेट. अब आगे से जब भी आपके पास मिटिगेट वर्ड आएगा, आपको मिट्टी का एक गेट याद आएगा, राइट? क्योंकि मिट्टी का गेट ऑलरेडी हमें पता है दिमाग में कि मिट्टी का गेट क्या होता है. वी नो. हमने मिट्टी गेट को मिट्टी के गेट से जोड़ दिया, एंड उसके ऊपर हमने क्या विजुअल ऐड किया कि आप वहां पर वो मिट्टी का गेट बना रहे हो और आपका फ्रेंड आके उसके ऊपर पानी डाल रहा है और आप उसको डांट रहे हो कि ऐसा मत कर क्योंकि इससे इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है. अब यहाँ पे हमने ना दोनों सीक्रेट्स अप्लाई करे.
पहला सीक्रेट अप्लाई किया, क्या अननोन से नोन बनाया, मिटिगेट अननोन था उसको हमने नोन बना लिया, मिट्टी का गेट। और उसके बाद हमने वो जब अननोन से नोन बना लिया उसके अंदर हमने इमेजेस ऐड करी, हमने साउंड ऐड किया, हमने आपको ऐड किया वहां पे, आप वहां पे बैठे। मिट्टी का गेट कौन बना रहा था? आप बना रहे थे, राइट? आपका फ्रेंड था जो पानी डाल रहा था एंड यू वर स्कोल्डिंग हिम कि ऐसे मत कर नहीं तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने विजुअलाइज भी किया और हमने सेकंड सीक्रेट भी अप्लाई किया जो कि अननोन टू नोन था, राइट? गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर application of these two secrets, right? So we turned the unknown into known and we added the colors and movies and sounds etc to visualize to make it interesting. अब आज के बाद जब भी मिट्टी गेट का वर्ड आएगा ना यार, आप लोगों को याद आएगा मिट्टी का गेट, और मिट्टी का गेट आप बना रहे थे और वो आपका फ्रेंड पानी डाल रहा था जिससे उसकी स्ट्रेंथ लेस हो रही थी, राइट? तो मिट्टी गेट मतलब लेस, और बीच में ये स्टोरी, ओके? नाउ सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग कुछ और वर्ड्स पे ट्राई करते हैं। ऑलराइट, आर यू रेडी? आर यू विद मी गाइस हियर? थोड़े से कुछ और वर्ड्स पे हम लोग याद करेंगे, हम लोग कुछ और वर्ड सीखेंगे यहाँ पे, applying these same secrets of concentration, right? All right, so the word is insipid. ध्यान दीजिएगा, वर्ड है insipid. insipid का मतलब होता है tasteless. insipid का मतलब होता है tasteless. और अब इसको मैं याद कैसे करूं? insipid को मैंने तोड़ दिया इतनी स्पीड, insipid को तोड़ दिया इतनी स्पीड। Now imagine you entering your house और आपको बहुत भूख लगी और आप इतनी स्पीड से मैगी खाई जा रहे हैं एंड योर मॉम इज टेलिंग यू कि बेटा अगर इतनी स्पीड से खाना खाओगे तो खाना टेस्टलेस हो जाएगा, इतनी स्पीड से खाना खाओगे तो खाना टेस्टलेस हो जाएगा, राइट? सो इंसिपिड को आपने तोड़ा किसमें? इतनी स्पीड से खाना कौन खा रहा है? आप खा रहे हो, राइट? मैगी खा रहे हो, राइट? इमोशंस भी जुड़े हैं, आप वहां पे खा रहे हो, और आप वो जब ये विजुलाइज कर रहे हो तो what is that your mom is telling कि इतनी स्पीड से खाओगे तो खाना टेस्टलेस हो जाएगा। तो इंसिपिड से याद आता है इतनी स्पीड से याद आता है टेस्टलेस। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज चोटल। लाफ इन अ नॉइजी वे इसका मतलब होता है। अब मैंने चोटल को ब्रेक कर दिया, चोर टल गया। अब किसी के घर में अगर चोरी टल गई मतलब अवॉइड हो गई। किसी के घर में अगर चोरी टल जाए, चोर टल गया, तो क्या वो बंदा खुश होगा या रोएगा? Obviously खुश होगा, right? He will be laughing in a noisy way, right? So चोर टल गया, that is why everyone is laughing, okay? So चोटल से याद आता है चोर टल गया, और चोर टल गया तो you are laughing in a noisy way, okay? All right, next word is intricate. इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। इंट्रिकेट कैसे याद रखूं? एंट्री ऑफ अ कैट, एंट्री कैट। इंट्रिकेट से याद आता है एंट्री कैट। अब देखिए इंट्रिकेट मेरे को नहीं पता क्या है, राइट? बट एंट्री कैट मेरे को पता है, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि एंट्री ऑफ अ कैट वाज रियली कॉम्प्लिकेटेड। एक दरवाजे में से एक बिल्ली घुसने की कोशिश कर रही थी एंड दैट एंट्री फॉर दैट कैट वाज रियली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? तो इंट्रिकेट से याद आएगा एंट्री कैट। एंट्री कैट की एंट्री क्या थी? कॉम्प्लिकेटेड थी, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वैंडर। स्क्वैंडर से मेरे को याद आती है स्प्लेंडर बाइक, स्प्लेंडर, राइट? और इसका मतलब होता है मनी वेस्ट। ही वेस्टेड ऑल हिज मनी टू बाय द स्प्लेंडर बाइक, ठीक है? स्क्वैंडर से याद आया स्प्लेंडर बाइक, और उसने अपने सारे का सारा पैसा वेस्ट कर दिया स्प्लेंडर बाइक को खरीदने के लिए, ठीक है? तो स्क्वैंडर मतलब मनी वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड से याद आती है कैंडीज, कैंडिड से याद आता है कैंडीज। और यहाँ पे जो मैं स्टोरी बना रहा हूँ ये है कि मेरे बॉस ने मेरे को कैंडीज खिलाई, और वो ऐसी कैंडीज थी जिनको खा के मैं सब कुछ फ्रैंकली एंड आउटस्पोकनली बोलने लग गया। और उसके बाद मेरी जॉब का क्या हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं, राइट? ऑलराइट, सो कैंडिड का मतलब हुआ, कैंडिड से मेरे को याद आती है कैंडीज। कैंडीज मतलब ये हुआ कि मेरे बॉस ने मेरे को ऐसी कैंडीज खिलाई जिससे कि मैं फ्रैंक और आउटस्पोकन हो गया, ठीक है? तो कैंडिड का मतलब फ्रैंक एंड आउटस्पोकन। नेक्स्ट वर्ड इज एवराइज। एवराइज का मतलब होता है ग्रीड। अब इसको मैं कैसे याद रखूंगा? एवराइज को एवा क्वालिटी के राइस या एवा ब्रांड के राइस, ठीक है? अब एवा ब्रांड के जो राइस होते हैं या एवा क्वालिटी के जो राइस होते हैं वो जब भी मैं खाता हूं मैं बहुत ग्रीडी हो जाता हूँ, मेरे अंदर एकदम से ग्रीड सवार हो जाती है, मैं बहुत ग्रीडी हो जाता हूँ जब मैं एवा क्वालिटी के राइस खाता हूँ, राइट? सो एवा राइस से याद आता है एवा क्वालिटी के राइस, और वो खाते ही क्या हो जाता है? ग्रीड, ओके? नेक्स्ट इज ऑल्ट्रुइस्टिक, मतलब अनसेल्फिश। ऑल ट्रू, ऑल्ट्रुइस्टिक से याद आता है मेरे को ऑल ट्रू। एक ऐसा इंसान जो सब कुछ सच बोलता है, सब कुछ ट्रू बोलता है, वो एक अनसेल्फिश पर्सन होता है, ओके? द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांक्विल। ट्रांक्विल का मतलब क्वाइट और पीसफुल। अब यहाँ पे ट्रांक्विल से मेरे को याद आता है ट्रांक्विल, ट्रेन में कुली, राइट? सो हुआ क्या कि मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन पे गया, मैंने देखा वहां पे सारे के सारे कुली शांत बैठे थे। अब बताइए कि ऐसा हो सकता है कि किसी रेलवे स्टेशन पे सारे के सारे कुली शांत बैठे हो? कुली सबसे ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं, राइट? कि लाइए आपका सामान। तो ये एक बिजार इवेंट है जो आपको याद रहेगा। ट्रैंक्विल से याद आता है ट्रैंक्विल से याद आता है ट्रेन में कुली, और ट्रेन में कुली जब आप गए ट्रेन में तो कुली क्या कर रहे थे? पूरे के पूरे पीसफुल बैठे, राइट? सो दीज आर द 8 वर्ड्स। अगर अब
again, if I ask you, if you just revise them quickly, right? इंसिपिड का मतलब क्या था? इंसिपिड से क्या याद आता है? इतनी स्पीड से मैगी खा रहे थे तो क्या हो रहा था? टेस्टलेस. चोट टल गया तो what we are doing, we are laughing in a loud manner, right? इंट्रीकेट से क्या याद आता है? कैट की एंट्री. एंट्री कैट की एंट्री क्या थी? कॉम्प्लिकेटेड थी. स्क्वांडर से मेरे को क्या याद आता है? स्क्वांडर से मेरे को याद आता है स्प्लेंडर बाइक. और स्प्लेंडर बाइक को लेने के लिए मैंने अपना सारा मनी क्या कर दिया था? वेस्ट कर दिया था, राइट? कैंडिड से याद आती है कैंडीज, राइट? अब वो मेरे बॉस ने मेरे को ऐसी कैंडीज खिलाई कि मैं वो खाने से क्या हो गया? फ्रैंक एंड आउटस्पोकन, राइट? एवा क्वालिटी के राइस जब मैंने खाए तो अंदर क्या आ गया? ग्रीड आ गई. ऑल्ट्रुइस्टिक, जो बंदा ऑल्ट्रुइस्टिक से याद आता है ऑल ट्रू. जो बंदा ऑल ट्रू बोलता है, सब कुछ सच बोलता है, वो अनसेल्फिश होता है, राइट? वो अनसेल्फिश होता है. द नेक्स्ट वर्ड वाज ट्रंक्विल. जब आपने देखा ट्रंक्विल से याद आता है ट्रेन में कुली. और ट्रेन में कुली क्या थे? शांत, पीसफुल. All right, so give me a thumbs up, guys, if you manage to remember these 8 words now, right? And I'm sure आपको ये 8 words जिंदगी भर नहीं, no words mitigate भी है, no words जिंदगी भर नहीं बोलेंगे. This is coming from my own experience. जब भी मैं डेमोज देता हूँ बच्चों को और जब मैं मेन क्लास में आता हूँ उनके साथ, उनको ये सारे के सारे वर्ड्स याद रहते हैं और वो कहते हैं हमने सर एक बार भी रिवाइज नहीं किया है इनको. वो याद क्यों रहती है? क्योंकि ये इनको हमने विजुअलाइज किया है और ये जो अननोन थे इनको हमने नोन बना लिया है, इनको हमने अपना बना लिया है. And they are in our brain now, right? They are associated with us, right? Okay, so कितना अच्छा हो कि अगर ये जो 8 वर्ड्स या 9 वर्ड्स के साथ हमने किया है, right? हम सेम टेक्निक, if we apply the same technique to learn more words, कितना अच्छा हो. Give me a thumbs up if you want to learn more words, right? अब यहीं पे ही it gives me immense pleasure and immense proud that one of my students, Malika Kapoor, with me, we have actually written a book regarding this super power vocabulary, right? So what Malika did was, Malika was one of my students in my mind memory one day, जो मैं class लेता हूँ, and she got so inspired by this particular technique कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पूरी की पूरी book लिख डाली और जिसके अंदर more than 100 words. अभी तो मैं आपको I'm giving you these, I'm talking about these 100 words. उन्होंने more than 100 words, मेरे ख्याल से 250 words के अराउंड इस बुक में है जो सेम टेक्निक से एक्सप्लेन है. And believe me guys, these 250 words you can easily remember in a month's time. इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है मलिका ने इस बुक में इन सब वर्ड्स को यूजिंग सेम टेक्निक्स. and I'm really proud of that thing. Now tell me, who would like to get this free ebook? Who would like to get this ebook absolutely free of cost? Chat में लिखिए me. Chat में लिखिए me guys. Chat में लिखिए me. All right. I'm getting me from everyone. Okay. So इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको जो करना होगा, let me tell you. I'll be giving you next 2 minutes. Okay. I'll be giving you next 2 minutes. Go on to this link. This is my Insta link here, guys. Go on to this link. Follow this and वहाँ पे message लिखिए super learner. वहाँ पे message लिखिए super learner. Go on to this link. मैंने chat box में डाला है link. Go on to this link. Click follow and message कीजिए super learner यहाँ पर. And you will be getting this book absolutely free of cost by the end of day today. Okay, I'm giving you 2 minutes, guys. पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ so that we can proceed as well, right? Link, Aditi, link is in the chat box. Link is in the chat box. All right. I'm again posting the link. It is there in the chat box, guys. Urvi, if you don't use Insta, you can call me at the number I'll be displaying at the end of the class. Guys, this is the link. Aditi, this is the link. I'm posting it again. All right. Okay, if you're not using Insta, I'll be leaving my credentials at end of this class, and you can WhatsApp me and I'll give you the link. Okay. But guys, I strongly recommend to stay connected with me on Insta because I'll be bringing up with more surprises for you guys once you are connected with me, right? Okay.
इंस्टा पे चाहिए फॉलो कीजिए और वहां पे लिखिए सुपर लर्नर, सो दैट आई नो दैट सिर्फ सुपर लर्नर जिसने लिखा है उसी को ही मैं गिफ्ट दूंगा, उसी को ये गिफ्ट दूंगा. दैट इज व्हाई मैसेज लिखना है, राइट? देयर वाज अ क्वेरी फ्रॉम वन ऑफ द यूजर्स हियर, Radhika, right? Radhika, so that's the answer. Yes, yes, Neil, you need to write super learner in DM. Yes. All right, guys. So without making further delay, let's move ahead. And I would really like to thank you, Malika, here for allowing me to give away this book absolutely free for you guys. Thank you, guys. All right. So if you don't use Insta, guys, don't worry. At the end of the session, you'll be having my number, and you can get those books, right? All right. So let's proceed ahead here, guys. I think we are थोड़ा सा हम लोग late हैं यहाँ पे. But anyways, आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है डिस्ट्रैक्शंस की, राइट? एंड आई थिंक यू मस्ट एग्री विद मी कि डिस्ट्रैक्शंस की सबसे बड़ी दिक्कत है, चाहे वो आपका स्टडी टेबल हो जो क्लटर्ड हो, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, चाहे आप पढ़ने बैठे हो और आपको एकदम से फोन आ गया, कि किसी का फोन आ गया और आप बस वहीं पे ही बिजी हो गया, एंड यू सी कि अरे यार आधा घंटा निकल गया, हमें पता ही नहीं चला, राइट? ऐसा होता है हम लोगों के साथ. या फिर ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड का कॉल आ गया और उसने अपने डाउट्स पूछने के लिए आपका आधा घंटा खराब कर दिया. ऐसा होता है कितनी बारी. और कितनी बारी ऐसा होता है कि और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, बट हम खुद ही अपने ख्यालों में खोए होते हैं यार कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. एंड देन वी लुक एट द टाइम, वी से ओ माय गॉड, हाफ एन आवर इज ऑलरेडी गॉन. ऐसा होता है हमारे साथ. और गाइज इसके बाद क्या होता है, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, वी इजिली गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड वी फील गिल्टी. कितनी बारी ऐसा होता है, मैं बुक लेकर बैठा, सपोज कीजिए मैं पढ़ने बैठा और एकदम से एक इंस्टा का या एक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया, मैं उसको चेक करने लग गया. बुक मैंने छोड़ दी, मैं उसको चेक करने लग गया. ठीक है, चेक कर लिया. अब मैंने कहा चल यार मैं इंस्टा भी देख लेता हूँ, मैं फेसबुक भी देख लेता हूँ, मैं कुछ और चीजें कर लेता हूँ. इस तरह से मैं चीजें करने लग गया, राइट? मैंने जब मोबाइल रखा, आई लुक एट द वॉच, हाफ एन आवर गॉन, हाफ एन आवर गॉन, यू वेस्टेड योर टाइम. अब दोबारा से पढ़ने बैठ गए. अब दोबारा से पढ़ने बैठे, एकदम से दिमाग में विचार आया, अरे यार मैं तो अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करता रहता हूँ. यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, राइट? ऐसा होता है हमारे साथ, हम वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी. यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं क्या करूंगा, कैसे होगी पढ़ाई, मैं हर बार आधा घंटा करके वेस्ट करता रहता हूँ, ये तो मेरे को पढ़ना था यहाँ पे. एंड यू वरी अबाउट योर फ्यूचर, यू एक्चुअली वरी अबाउट योर फ्यूचर कि अगर ऐसे ही चलता रहा, विल आई बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, विल आई बी एबल टू लर्न दीज थिंग्स, यस, नो, मे बी, आई डोंट नो, राइट? एंड यू फील पावरलेस. और आप वहां पे एकदम से आपके शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, आपकी फिजियोलॉजी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है, राइट? एंड बिकॉज यू फील पावरलेस, आपको लगता है यार इसमें तो कुछ रखा नहीं है, चलो मैं दोबारा से मोबाइल ही उठा लेता हूँ, एंड यू फील डिस्ट्रैक्टेड अगेन. और आप इसी विशियस सर्कल में फंस जाते हो बार बार, राइट? यस और नो गाइस, राइट इन द चैट बॉक्स यस, टाइप इन द चैट बॉक्स यस इफ यू फील डिस्ट्रैक्टेड दिस वे, राइट? यस, यस यू डू, आई नो. ऑलराइट, सो कितना अच्छा हो. यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ना दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, डिस्ट्रैक्शन को. पहला तरीका है कि हम गूगल पे सर्च कर ले कि भैया डिस्ट्रैक्शन हटाने के क्या क्या तरीके हैं. बट देन उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ आप एक बाहर से आपने कोई सिस्टम ले लिया, कोई टेक्निक्स ले ली, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स ले ली. नहीं, आई एम नॉट इन फॉर इट. मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा अनबीटेबल चीज दूंगा जिससे कि आप डिस्ट्रैक्शन को बीट कर सकते हो, राइट? I will be working on your mindset here, guys. ठीक है? If you are ready here, this is very very important. ध्यान से जुड़े रहिएगा मेरे साथ. अब देखिए डिक्शनरी मीनिंग जो है डिस्ट्रैक्शन का क्या कहता है कि something that prevents you or me from giving full attention to the task at hand. Now there is a task at hand, right? I'm trying to give my full attention to it, but then there is something outside which prevents me from giving the full attention. प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये समथिंग जो है ना, इसके पास सारी पावर है, क्योंकि आप तो अपना पढ़ रहे हो, यू आर ट्राइंग टू गिव फुल 100%, बट समथिंग विल कम, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन विल कम, फेसबुक नोटिफिकेशन विल कम, आपके दोस्त का फोन आ जाएगा, आपके इंटरनल थॉट्स आ जाएंगे, किसी ने घर पे टीवी चला दिया, किसी ने बाहर लाउड स्पीकर चला दिया, राइट? समथिंग विल कम एंड विल डिस्ट्रैक्ट यू. पावर किसके पास है? समथिंग के पास. डिक्शनरी मीनिंग जो होता है डिस्ट्रैक्शन का कहता है समथिंग दैट प्रिवेंट्स यू from giving the full attention to the task at hand. But now today let us change this definition, right? क्योंकि हम जिस तरह से definition चीजों को define करते हैं, वही चीज हमारी life को define करते हैं, guys. Now distraction is not something. Distraction is my response to something that prevents me from giving full attention. Okay? मैं पढ़ रहा हूँ, Facebook notification आया, वो something है. Facebook notification आया, वो something है. What is my response?
माई रिस्पॉन्स है इग्नोर, मैं पढ़ रहा हूँ। किसके पास आ गई ताकत, पावर किसके पास आ गई, मेरे पास या उस फेसबुक नोटिफिकेशन के पास? मैं पढ़ रहा हूँ, बाहर किसी ने लाउड स्पीकर चला दिया, बाहर किसी ने बहुत लाउड म्यूजिक चला दिया, मेरा रिस्पॉन्स क्या है, मैंने ईयरबड्स लगा लिए कान में एंड आई एम स्टिल रीडिंग। कौन पावरफुल है, आप या वो समथिंग? पॉइंट यहाँ पे ये है गाइस कि आपको यहाँ पे पावर में रहना है। माई रिस्पॉन्स, इट इज माई रिस्पॉन्स टू समथिंग दैट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गिविंग फुल अटेंशन टू द टास्क एट हैंड, राइट? माई रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे फर्क जो आता है, पावर इज विद मी, पावर इज विद मी। और गाइस मैं इन डेफिनेशंस पे काम क्यों करता हूँ, बहुत जरूरी है, बिकॉज योर बिहेवियर्स आर ड्रिवन बाय योर बिलीव्स। आपको कहीं ना कहीं ये बिलीव सिस्टम चेंज करना ही पड़ेगा कि भाई पावरफुल जो है ना वो ये डिस्ट्रैक्शंस, ये समथिंग, ये पावरफुल नहीं है। पावरफुल कौन है? आपका रिस्पॉन्स। द वे यू रिस्पॉन्ड इज पावरफुल गाइस, राइट? All right, so how many of you like this idea of this chase distraction, guys? Type me in the chat box जिनको ये idea समझ में आया, right? और ये idea आपको अच्छा लगा, right? All right, so I think many of you like this idea, and और यहाँ पे मैं थोड़ा सा I'll be now moving ahead and moving to the second part here, guys, section 2. अच्छा, सो ये डिस्ट्रैक्शन की बात होगी। हमने बहुत सारी चीजें करी आज, राइट? हमने सीक्रेट्स ऑफ कंसंट्रेशन समझा, हमने समझा डिस्ट्रैक्शन किस तरह से ना हो, हमने ये भी समझा कि हम वोकैबुलरी को किस तरह से, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट? हमने ये सब सीखा। अब सेक्शन 1 ओवर हो गया है। सेक्शन 1 किन किन को पसंद आया? जस्ट राइट आई इन द चैट बॉक्स। से आई गाइस, से आई लिखिए एक बारी चैट बॉक्स में, किन किन को ये चीज पसंद आई। वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन गाइस। थैंक यू सुष्मिता, थैंक्स रिचा, निधि, GBR, Bhumika, Pari, Nisha, Shefali. I loved it. As awesome. Thank you very much. Lakshay, Urvi. All right, guys. All right. And thank you so much for staying here, guys, for these 40-45 minutes here. अब मैं यहाँ पे I'll be talking about the session which I usually take. Right? So pre-COVID era में, pre-COVID era मतलब मार्च से पहले, we used to conduct a full day workshop. Which is called Memory Mastery Mind Your Mind. It was a full day workshop, और यही वो workshop थी जिसकी मलिका भी part थी. Malika was also part of that, wherein she learned all more strategies and techniques, and she eventually wrote a book. She is an author today, right guys? Congratulations to her all the time, right? ये बार-बार निकलता है मेरे मुंह से because she is one of the wonder girls here, right? Okay, so I'm talking about this memory mastery course, right? Mind Your Mind. Now, considering अभी ये हम लोग ऑफलाइन लेते थे, बट अब इसको हमने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है. दिस कोर्स विल बी ऑफ 6 hours स्प्रेड ओवर 3 days, मतलब 3 दिन क्लासेस चलेंगी 2-2 घंटे की, सो दैट आपको मैक्सिमम इसमें से मिल सके. अब ध्यान से देखिए कि इस कोर्स में हम लोग आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, राइट? आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी ट्रेनिंग यू ऑन द मेमोरी. विल बी टॉकिंग अबाउट कि मेमोरी ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए, मेमोरी बनती कैसे है, राइट? वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ अ लर्नर यू आर. आप किस तरह के लर्नर है, आप ये समझेंगे. और अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग यहाँ पे मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे कि आप अटैकिंग बैट्समैन है या आप डिफेंस में स्ट्रांग है. अगर आपको ये पता चल जाए आपके स्ट्रांग पॉइंट्स, आपके वीक पॉइंट्स, तो क्या आप और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट? सो आपको अगर पता चल जाए कि आप किस तरीके के लर्नर हो, आप अपनी लर्निंग की स्ट्रैटेजीज वहां पे उस हिसाब से मोल्ड कर लेंगे, राइट? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली, और इसमें किसी की गलती भी नहीं है, टीचर्स जब हमें पढ़ाते हैं तो वो एक ही तरीके से पढ़ाते हैं, राइट? नाउ इट इज अप टू अस कि हम उस चीज को मोल्ड करके अपने लर्निंग स्टाइल से किस तरह से लेकर आए, सो दैट वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? Then there are some myths about the memory which I'll be talking about. We'll be talking about the train memory, जिसका हमने छोटा सा एक ट्रेलर देखा आज. We'll be learning about principles of learning. Learning के principles क्या है भाई, हमें किसी ने बताया आज तक? हमें अरिथमेटिक सबने बताया, रीडिंग सबने बताया, हिस्ट्री सबने बताई, साइंस सबने बताई, बट हाउ टू लर्न, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग किसने बताया हमें? किसी ने नहीं. I'll be telling you those guys. I'll be taking you through the chain method, KitKat method of learning. Amazing method है ये guys, ये amazing method है. I'll be telling you the power of mnemonics. Mnemonics को use करके आप किस तरह से चीजों को ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं. I'll be telling you how to remember the numbered list. राइट? हाउ टू रिमेंबर नंबर्स, डेट्स किस तरह से याद किए जाए. स्पेलिंग्स में हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. कॉन्शियस में एस आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता. डेजर्ट में सिंगल एस से डबल एस हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं. बट आई विल बी टेलिंग यू सुपर वेज टू रिमेंबर स्पेलिंग्स गाइस, राइट? And you might be able to relate to the next line here. Reactivity series, periodic tables, right? Nitric acid, books and authors. ये सब चीजें कैसे याद करी जाए, I'll be telling you in this super
in this super course, which is Memory Mastery, Mind Your Mind. And that's not it, guys. I'll be telling you the secret to eliminate distractions. जो मैंने अभी सिर्फ mindset पे बात करी, इसके बाद मैं आपको और बहुत सारे techniques भी बताऊंगा कि distraction को और किस तरह से आप beat कर सकते हैं. I'll be telling you how not to forget. I'll be telling you power of brain waves. Brain waves क्या होती है, किस तरह से आप इन brain waves के state में जाके अगर आप एक बार ही पढ़ें आप उसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, right? Breathe your way to success. I'll be telling you some breathing exercise which are really good for you as a learner, right? I'll be telling you 7 effective ways to deal with exam pressure. 7 effective ways to deal with exam pressure. Don't let a bad habit ruin your self-esteem, and how to form good habits and get rid of bad ones. And that's not it as well, guys. I'll be telling you 5 more ways, 5 ways to make sure a habit stick. आपने एक नई habit बना ली, उस पर स्टिक कैसे रहे. हाउ टू डील विद बिग बोरिंग चैप्टर्स. हिस्ट्री के बिग बोरिंग चैप्टर्स होते हैं भाई, किस तरह से डील करें हमें नहीं समझ में आता. आई विल बी टेलिंग यू किस तरह से बिग बोरिंग चैप्टर्स को ब्रेक किया जाए और उसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज किया जाए. और इसी में एक बहुत बढ़िया हैक आता है जिससे कि आप अपनी क्लास में अपने स्कूल में पॉपुलर भी बन सकते हैं. Just with the solution of this, how to deal with big boring chapters. Then I'll be telling you कि sample papers कितने important है हमारे लिए और हम किस तरह से last के days में sample papers से पढ़ें so that we ensure 100% coverage. How to make better notes. क्या हमें अच्छे से notes बनाने आते हैं? I'll be telling you a brilliant method of taking notes, right? How to beat procrastination. हम बार-बार procrastinate करते हैं, चल यार कल पढ़ेंगे. This thing will be telling you किस तरह से किया जाए procrastination को beat. Achieve more by doing less. Smart work. सबने आपको बोला होगा बेटा स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो. बट कैसे स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं? That is what I'll be telling you in achieve more by doing less, right? How to beat overthinking and worrying. बहुत वरी करते हैं हम लोग आजकल, बहुत वरी करते हैं. This will be telling you how not to worry. And then lastly, I'll be talking about multitasking. So guys, let me know ये जो content है, ये जो एक पूरे एक दिन का जो कोर्स है, जो 6 घंटे का कोर्स है, इसका कंटेंट किन किन लोगों को पसंद आया. Say type like in the chat box, guys. Type like in the chat box. Yeah, like very nice, very good. Okay, thank you Sonia, thank you Khyati, thanks Neil, hey Aditi, thanks Poonam, Neil, Karmanya. All right. So yes, I understand that you like this content, right? And all right, so if I talk about the costing part, the investment part of it, मैं मतलब price नहीं बोलता हूँ, मैं investment बोलता हूँ क्योंकि you are investing here, right? You are actually making an investment if you are enrolling into this course. Now, अगर मैं pre-COVID era की बात करूँ, जब मैं ये sessions offline, लेते थे, offline mode में लेते थे, we used to deliver this session for 2,999. It costed 3,000 rupees, right, guys? Because there were logistic costs involved and all the stuff. But considering आजकल की जो situation है, because we are on this digital platform, right, wherein logistic cost bilkul minimum hota hai, and we are doing this in conjunction with Webinar Wall, this course, this 6-hour course is available to you guys at just 499 rupees. Just 499 rupees, and that is nothing but a cost of a pizza. All I'm asking you कि आप मेरे को एक पिज्जा खिलाओ, आप मेरे को एक पिज्जा दो और मैं आपको ये सब चीजें दूंगा. आप मेरे को एक पिज्जा दो और मैं आपको ये सब चीजें दूंगा. How many of you like this idea? Type pizza in the chat box, guys. Type pizza, that yes, you will be giving me pizza. Okay, so yeah, pizza, right? So आप मेरे को पिज्जा दीजिए. I am just asking for 499 here, and I'm giving you all these things, guys, all these things, and it is really worth it. कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने डोमिनोज का पिज्जा खाया, पिज्जा हट का पिज्जा खाया, लेकिन ये सब चीजें आपको आ गई? ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ, right? And all I'm asking you is this pizza. And that is not enough. If you are one of me who says dil mange more, there's something more coming for you guys. There's something more coming for you here, and which is, if you enroll in this course by midnight today, आज रात को 12 बजे से पहले अगर आप इस कोर्स में enroll कर लेते हैं, तो what all you will be getting? You will be getting this course for sure. Obviously, you will be getting the memory mastery. You will be getting the full book which was written by Malika, जिसमें 200 या 250 words हैं. I think 2 या 250 words थे उसके अंदर. You will be getting that super power vocabulary ebook absolutely free. जो मैं कोर्स के बीच में जो मैंने बुकलेट की बात करी थी उसके अंदर 100 words थे, but then this book has 200 or more words over here, right? You will get 50% off my book, Hidden Secrets of Super Learner. This is my book which is on Amazon. You will get 50% off my book, and I will be personally shipping it to you with my autographs over here, right? You will be getting a 60-minute consultation with parent and children.
Usually, so I do this this one-to-one coaching as well with parents and students, and I charge 2,000 for 60 minutes, right? Usually, and this will be given to you absolutely free of cost, guys. Free of cost. You will be getting a lifetime support here. अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको future में, you will be getting that lifetime support. And obviously, many of you would be looking for an e-certificate, which would be definitely given by the webinar wall here, right? So if you have any questions here, you can write in the chat box, guys, and I'm happy to answer. But before that, and yes, obviously all this for 499, just for 499. अब ये देखिए कि इसके अंदर आपको 50% ऑफ मिल रहा है मेरे सुपर लर्नर बुक पे. You are getting a 2,000 worth consultation with me free of cost. You are getting this super power vocabulary जो खुद 499 की ही बुक है, जिसका MRP ही 499 है, right? You're actually getting this course free of cost, right, guys? So the investment is 499, and if you have any confusions regarding the course date and time, so these are the timings. It will be 25th, 27th, 29th, 2 hours each, 6 to 8 p.m. That makes it 6 hours, right? So you need to register now to avail all these bonuses, right? So Ayushi would be sharing sharing the payment link here. And before that, if you guys have any questions here, yes, how to enroll Ekansh, I will tell you. Can I recommend this to my friend? Definitely do that. And I think can I recommend this course to my friend? Yeah, Kural, yeah, definitely you can do that. Ekansh says nice. Can I recommend? Will it be in English? It will be in English. That is Hindi and English. And let me also share the link with you. So yep. So you can enroll by making the payment here, and if you make the payment before midnight today, guys, you will get those bonuses, right? And guys, this is again a most important slide to me. It says nothing is more expensive than a missed opportunity, guys, than a mixed opportunity, right? And if you miss this opportunity, if you still feel 499 is expensive, believe you me, guys, I'll be giving you the value worth 5,000 bucks over here, right? More than that, right? And nothing is expensive than a missed opportunity. अगर opportunity एक बारी miss हो जाती है, वो ज़्यादा expensive है बजाय के आपका ये course का cost. And my inaction has ruined so many great opportunities. This is one of the quotes जो कहता है कि मैं अगर अभी action नहीं लेता हूँ, it actually ruins so many great opportunities, guys. All right. So I'm again looking at the chat. If you have any questions, I'm looking actively at the chat now, and next 5 minutes would be for Q&A, guys. So if you have any questions here, you can let me know. All right. Can I use this link and share on WhatsApp with my friends? Yes, you can do that. Kunal, thank you. Where we have to send the screenshot, Ayushi, if you can reply that. Is there any level 2? No, this is the entire level, Kamakshi. This is the entire level. I'll be telling you here. Sir, what is the coupon code? There's no coupon code. If you click on the link here, the payment link, it will take you, and it is 499. It is 499, right? There's no coupon code. All right, guys, so this is coming to you at cost of a pizza, guys. Pizza, right? Sir, please send the WhatsApp number to purchase the book. Yes, I will definitely do that. Sir, if I want to enroll tomorrow, Sushmita, what's stopping you from taking this, from taking all these bonuses? Why do you not want to take the bonuses here, right? Sushmita, you can enroll today. I'm a tutor. Will it help in extending my help to students? Definitely, Kamakshi, definitely. I have been personally teaching students as well, academics. I have been a science teacher, and believe you me, Kamakshi, it has actually helped a lot to these guys, right? Right. So definitely, this is a wonderful course, and it is only coming at a cost of a pizza, yaar. Come on, all I'm asking you just for a pizza party, right? आप कितने दोस्तों को अपने or probably just show me a movie, right? Show me a movie, buy me some popcorns, and I'll give you all these things. This is all coming just this is all coming just for the cost of 499. Harshita says how to buy the book of 200 words. Harshita, I'll be sharing my number after this session. I mean that is the next slide, and you can ping me, right? You can ping me. Okay, so if you guys have any issues, these are my signatures. You can write it down. This is my email ID. This is my website, bhaumiksen.com. My email ID is bhaumik.sen@gmail.com.
This is my Insta, this is my Facebook, and this is my number, 9999978474, right? So guys, I strongly recommend you to not miss this opportunity. Do not miss this opportunity, because this is the same course we were delivering it for 3,000 before the COVID era, right? And it was a super hit. It was a super hit. And one more thing, we don't take more than 25 students in one class. We do not take more than 25 students in a class. So hurry up, there are limited seats. And it used to be a strong, a hot seller course before the COVID times as well. So, and this is coming to you just at the cost of $499, guys. Just $499, that's it. So I'm again looking at the chat window here. Okay. Just a minute. Okay, if you have any questions here, Thank you, Richa, for registering. Thank you, Kunal, for registering here. Thank you, Kunal, for registering, making registration for your friend as well. Sir, we will get 100 book free of cost if we WhatsApp you. Yes, Urvi, you will get that because you attended this webinar. Thank you for that. Sir, I've written super learner on Insta. How will I get the book for free? I'll be DMing it to you. I'll be sending the link to you, Radhika. Very nice session. Thank you. Can you please share payment link? That's already there. Guys, if you have any other question regarding regarding this, please let me know, because this is one opportunity I don't want you guys to miss. I really don't want you guys to miss, right? And yes, there will be, these are the things which I've promised, but then I'll make it sure that I'll give you more than what is promised, right? Because I'm here for you guys, because you are the future leaders. I'm here for you. All right. So, yep. Okay, one of the most useful, helpful, and the best webinars I've attended so far. Thank you, Kanishka, for your nice words. Malika Kapoor, here you go. Nice webinar. Thank you, Malika. So she's here, right? I have registered. Thank you, Shikha. I followed you Insta, message you. Thank you. Kindly let me know date and time. So date and time were I just message. Let me message that. So it is 25th, 27th, and 29th of August, 6 to 8 p.m. Snehal, Sushmita, thank you. It was amazing. Thanks, Poonam. Thanks, Join. Great session. Thank you. All right, guys. So if you have any questions here, if you want the payment link again, probably Ayushi can ping it. And you can get in touch with me on my credentials, what I have shared on the screen. Hope you're getting it. Right. Thank you, Surbhi. Thank you, Surbhi, for your nice words here. Thanks, Kamakshi. So you can get in touch with me on Insta. If you're not on Insta, you can get in touch with me on Facebook. That's my Facebook ID as well. You can write it down probably. I'm also on YouTube, but then the channel is not active considering there are a lot of webinars going on nowadays. But then it soon would be active, right? All right. So that was all from me. If you have any other questions, feel free to write on chat or feel free to WhatsApp me on my number, right? I hope you had a lovely session here. Guys, thank you so much for your attendance, and I hope I was able to deliver some good value to you at the end of this 1 hour, right? Okay, thanks. Thank you. Thank you, Radhika. Thank you, Urvi. Okay, so over to you, Ayushi. Yes, thank you so much, sir. I think the session was very much insightful. Our audience stayed with us for the full hour, and Lovely. I also personally, I think, learned a lot in the session. And thank you so much, everyone. I hope I'm seeing some amazing feedback on the chat box. Yep. So the session was also live on Facebook from the webinar wall page, and Okay. really looking forward to all of you enrolling for the workshop. If you have any queries, you can definitely follow Bhomik Sen on Instagram, or you can get in touch with us on Instagram, which is webinar wall, and we will be catering to all your queries. Also, if you're using Paytm, kindly send a screenshot to us so that we have your email ID. We will be doing all the communication through the mail, so kindly do that. And thank you so much. Thank you so much, sir. I think we will be ending the session now. Sure. So I'm again typing the link, the payment links, and if you have any queries, I'll also provide you with the email ID where you can get in touch with us. So thank you so much, everyone. Thank you, everyone, and feel free to reach out to me on this email or on this number. You have the number, right, guys? So thank you so much. Thank you.